हाय फ्रेंड्स। आज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लास्ट लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sexual reproduction. Sexual reproduction involves the fusion of gametes or sex cells resulting in the formation of zygote. Sexual reproduction में क्या होता है कि gametes का fusion होता है या sex cells का, और result में क्या बनता है, zygote. Due to the fusion of gametes का fusion होने की वजह से the chances of variation are very high during the sexual reproduction, और variation के chances बहुत बढ़ जाते हैं during sexual reproduction. Sexual reproduction in flowering plants. Stamen. It is the male reproductive part of flower. ये एक male reproductive part है flower का. It composed of two parts. ये दो parts से composed है, anther और filaments से. Pistil. It is the female reproductive part of the flower. ये एक female reproductive part है flower का. It composed of three parts. ये तीन parts से composed है. Ovary, style and stigma. Ovary the swollen bottom part, style middle elongated part, stigma terminal sticky part. Sepals. The green leaf-like parts of the flower are called sepal. The function is to protect the flower in its initial state. Sepals का क्या function है? ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब ये इनिशियल स्टेज में होता है. Petals. The colorful part of the flower are called petal. जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसे petals कहते हैं. Pollination. Important topic है, is the act of transferring pollen grain from the male anther of a flower to the female stigma. ट्रांसफ़र होता है pollen grain का from male anther to the flower to the female stigma. सेल्फ पॉलिनेशन. दो तरह की पॉलिनेशन होती है. एंथर टू द स्टिग्मा इज सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. एंथर और स्टिग्मा के दरमियान जब पॉलिनेशन हो बट वो सेम प्लांट हो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन. एंथर टू द स्टिग्मा बिटवीन टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. एंथर और स्टिग्मा के दरमियान लेकिन दो डिफरेंट फ्लावर प्लांट्स होंगे, उनके दरमियान में जब पॉलिनेशन होगी उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ ज़ाइगोट. फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का और बनाते हैं ज़ाइगोट, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. Reproduction in human beings. Puberty, the age at which the sex hormone and gametes begin to be produced and the boy and girl become sexually mature is called puberty. वो एज जहाँ पर सेक्स हार्मोन्स और गैमेट प्रोड्यूस होते हैं बॉयज़ और गर्ल में और वो सेक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं. In males, after puberty, testis starts producing sperm and the male sex hormone called testosterone. Males में puberty के बाद testis start कर देता है sperm को produce करना और male sex hormone जैसे testosterone. Male and female also start developing secondary sexual characters. Male और female में start हो जाते हैं secondary sexual character develop होना. Secondary sexual character in male. Hair grow in armpits. Hair grow होते armpits में. pubic region, chest और face. Body become muscular. Body muscular हो जाती है. Secondary sexual characters in female. Hair grow in armpits and pubic region. Hair grow होते armpits में. Fallopian tube, uterus and vagina enlarge. Fallopian tube, uterus और vagina enlarge होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी डायग्राम है. टेस्टिस. इट इज़ अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल. ये एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में. फंक्शन ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस के क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म को बनाना और टेस्टोस्टेरोन को सिक्रिएट करना. टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट इज़ मेल सेक्स हार्मोन. ये एक मेल सेक्स हार्मोन है. इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. ये मदद करता है डेवलपमेंट को, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को डेवलप होने में मदद करता है. इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ये स्पर्म की फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है. वास डिफरेंस. वास डिफरेंस डिलीवर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा. वास डिफरेंस स्पर्म को डिलीवर करती है टेस्टिस से यूरिथ्रा के लिए. प्रोस्टेट एंड सेमिनल विस्कल. Prostate or seminal vesicle. Both of these glands add fluid secretion to the sperm which makes the transport of sperm easier and provide nutrition. दोनों ग्लैंड
फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जहाँ पर कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है इजी तरीके से और प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन भी। यूरिथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है जो कि स्पर्म और यूरिन के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी डायग्राम है। ओवरी इट इज़ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल में। इट परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, ये दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वन एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, एक एग प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ बाय ओवरीज। फैलोपियन ट्यूब इट इज़ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल, ये एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल में। ये एक्ट करती है एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यूटेरस द ओविडक्ट यूनिट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूरेट्रस। Uterus opens into the vagina through cervix. Vagina it receives sperms from male partner, ये sperm को रिसीव करती है from male partner, serves as a birth canal. Cervix uterus is connected to vagina, uterus जो है वो कनेक्ट होता है vagina के साथ through a narrow opening called cervix. Fertilization and development of embryo. The sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse. Sperm enter होता है vaginal passage के ज़रिए जब sexual intercourse होता है। The fertilized egg zygote, जो fertilized egg zygote होता है start dividing to form a ball of cells or embryo. They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter, एक ये ट्रेवल करती है और पहुंचता है oviduct के पास जहां पर वो एग को इनकाउंटर करता है। The embryo is implanted in the lining of uterus, एम्ब्रोयो का इम्प्लांट किया जाता है लाइनिंग ऑफ यूटरस। they continue to grow, जहां पर वो कंटिन्यू ग्रो होता है और डेवलप होते हैं फिटस के ऑर्गन। The embryo gets nutrition from the mother's blood, एम्ब्रोयो को न्यूट्रिशन मिलती है मदर्स ब्लड से with the help of special tissue, एक स्पेशल टिश्यू है उसके लिए जो कि है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ये मदद करता है न्यूट्रेंट्स की एक्सचेंज में, ऑक्सीजन में और वेस्ट प्रोडक्ट्स में जो कि एम्ब्रोयो और मदर्स के दरमियान में। The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. जो डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की इनसाइड मदर बॉडी में वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स होती है, उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। Menstruation every month ovary releases one egg and uterus prepares itself to receive the fertilized egg by developing थिक स्पॉन्जी लाइनिंग। हर महीने ओवरी रिलीज करता है एक एग और यूटरस प्रिपेयर करता है अपने आप को फर्टिलाइज्ड एग रिसीव करने के लिए और डेवलप होती है थिक स्पॉन्जी लाइनिंग। If fertilization does not take place, egg along with the uterus lining break down and comes out through vagina as blood and mucus. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यूटरस लाइनिंग जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और वेजाइना से ब्लड आता है। This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. ये साइकिल रफली हर महीने होता है और उसे menstruation कहते हैं। It lasts for about 2 to 8 days, लगभग 2 से 8 days के लिए। Contraception it means the prevention or control of pregnancy, यानी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना या प्रिवेंट करना। कॉन्ट्रसेप्शन प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले है बैरियर मेथड, जिसमें कंडोम्स का यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है? इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ को अवॉइड करती है, प्रिवेंट करती है। केमिकल मेथड्स और पिल्स होते हैं। डिसएडवांटेज के इसकी इट चेंज हार्मोनल बैलेंस विच कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स, ये हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देता है और इससे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड, इसके डिसएडवांटेज क्या है? कैन कॉज इरिटेशन ऑफ यूट्रस, ये इरिटेशन करता है यूट्रस में। फोर्थ मेथड है सर्जिकल मेथड, वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी ब्लॉक ऑफ वास डिफरेंस इन मेल, मेल में जो वास डिफरेंस होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी ब्लॉकिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स, फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने क्लासमेट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।